কৃষ্ণনগরের খেটে খাওয়া শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, যুব, এসসি, এসটি, ওবিসি, হিন্দু, মুসলমান, শিখ, ইসাই, সর্বধর্ম সমন্বয়ে বিশ্বাস করা মানুষের প্রার্থী মহুয়া মৈত্রকে হাসের উপর জোড়া ফুল চিহ্নে 3 নম্বর বোতাম টিপে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার দায়িত্ব, দায়ভার আজকে আপনাদের কাঁধে। এই সমাবেশ থেকে আমি তুলে দিয়ে গেলাম। প্রধানমন্ত্রী এসে বলছে যারা মাছ খায় তারা হিন্দু বিরোধী, দেশ বিরোধী। কারা মাছ খান একটু হাত তুলুন, একটু হাত তুলুন তো কারা মাছ খান। একটা রাজনৈতিক দল সে ভোট চাইতে যাবে, আমি কি খাবো? আমি মাছ খাবো না মাংস খাবো? ঠিক করবে নরেন্দ্র মোদীর সরকার। যারা সন্দেশখালী নিয়ে গলা ফাটাচ্ছিল, আমি খালি একটা ছোট্ট ভিডিও দেখাবো আপনাদের। আপনারা এই ভিডিওটা খালি দেখুন কিভাবে বাংলাকে পুরস্কৃত করেছে। बंगाल में ये नारी शक्ति है तो बंगाल देश को आगे ले जा सकता है। इसलिए मैं मानता हूं कि बंगाल में नारी शक्ति, ये नारी के द्वारा उत्पीड़न जो चल रहा है उसका जवाब भी नारी शक्ति देगी। এটা তো পরিষ্কার কথা, মেয়েরা রেপ তো হয়নি না, কোনো মেয়ে কিন্তু রেপ হয়নি, কিন্তু তাদের वेलकम टू अनदर इलेक्शन शो। हम लोग इस समय पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर लोकसभा कंस्टिट्यूंसी में हैं। ये कंस्टिट्यूंसी महुआ मोइत्रा की है, जो कि जिनका पिछला कार्यकाल अंत में काफ़ी विवादित रहा था और उनको लोकसभा की सदस्यता गंवानी पड़ी थी। वो एक बार फिर से कृष्णानगर लोकसभा से चुनाव लड़ रही हैं। ये कालीगंज ब्लॉक का पानीघाटा इलाका है, जहाँ पर आज ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने एक बड़ी जनसभा आयोजित संबोधित किया है। और ये जनसभा इस मायने में बहुत ख़ास है कि यहाँ पर पहली बार संदेशखाली में जो कथित तौर पर महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाएं, यौन शोषण की घटनाओं के आरोप लगे थे, उससे जुड़ा एक स्टिंग ऑपरेशन आज से कल करीब मेरे ख्याल से 4 तारीख को जब रिलीज़ हुआ था, तब काफ़ी हलचल मची थी। और आज पहली बार एक भरी जनसभा में एक बड़ी सी स्क्रीन पर उस पूरे स्टिंग ऑपरेशन को अभिषेक बनर्जी ने लाइव लोगों को दिखाया और फिर उसके आधार पर उनसे लोगों से सवालात किए और लोगों से पूछे कि क्या इस तरह की चीज़ें जो है, और उसको उन्होंने बहुत चालाकी से बंगाली अस्मिता, बांग्ला अस्मिता से जोड़ा, बांग्ला प्राइड से जोड़ा। यहाँ पर जो पूरी बातचीत थी और महुआ मोइत्रा के अलावा बाकी नेताओं की, खासकर अभिषेक बनर्जी के जिन 2 बातों पर ज़्यादा फोकस था वो संदेशखाली की घटना थी। इसके अलावा ममता बनर्जी की जो वेलफेयर स्कीम है, जिसमें लक्ष्मी भंडार एक योजना है, जिसमें हर महिला को, हर बालिग महिला को 1,000 रुपये नगद जो मिलने की बात है, उसका जिक्र किया गया। इसके अलावा इसी तरह की और तमाम जो योजनाएं हैं टीएमसी की, उसमें फ्री राशन की योजना का भी उन्होंने जिक्र किया। इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ की जो लोग आए थे, कुछ महिलाओं से बात करेंगे, कुछ अन्य लोगों से भी बात करेंगे कि वो योजनाएं किस तरह से उन तक पहुँच रही हैं और संदेशखाली की जो घटना है वो उनको किस तरह से प्रभावित करती है। যেটা লক্ষ্মীর ভান্ডার নিয়ে বলছেন তৃণমূল কংগ্রেস সরকার, সেটা হচ্ছে এটা একটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের খুব ভালো প্রকল্প বলতে পারি। এতে অনেক মা বোনেরা উপকৃত হচ্ছে এবং এই উপকৃতর ফলে যেটা 500 টাকা ছিল জেনারেলদের জন্য এবং এসটি এসটি আদারদের জন্য 1000 টাকা ছিল, সেটা বেড়ে এপ্রিল মাস থেকে জেনারেলদের জন্য 1000 টাকা হয়েছে এবং আদার্স সম্প্রদায়দের জন্য 1200 টাকা হয়েছে। এটা আমাদের উপকারী হচ্ছে। মানে অনেক মা বোনেরা আছে যারা হচ্ছে কি হয়তো রোজগার করে না, অনেকের স্বামীরা আছে তারা রোজগার করলেও তাদের মানে ওয়াইফদের হয়তো সে টাকা পয়সা দেয় না, তো সেদিক থেকে তারা নিজেরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন হতে পারছে এবং তাদের কিছুটা হলেও হাত খরচা মেটাতে পারছে, যেটা আমাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিয়েছে। সেদিক থেকে মোদী সরকার বলতে গেলে সেরকমভাবে আমাদের জন্য কিছু করেনি। শুনতে পাই যে এটা পাবো, ওটা পাবো, সেটা পাবো, কিন্তু পাওয়ার বেলায় আমরা কিছুই পাই না। এট দ্য এন্ড অফ দ্য পয়েন্ট টিএমসি জিতবে, আর কোনো পার্টি জেতার কোনো চান্স নেই। হ্যাঁ, মারা, হ্যাঁ, বিবাহিত সবাই পাচ্ছে। হ্যাঁ, কন্যাশ্রী আমি নিজেও পেয়েছি। সিপিএন তো আগে থেকেই চোর, 34 বছর কিছুই করেনি। সিপিএন কিছুই করেনি, ওরা ভোট চাইছে, লজ্জা করা দরকার ওদের লজ্জা করা দরকার। মমতা যা করেছে কেউ কোনো পার্টি করতে পারবে না। মমতা এক নম্বর সরকার। সন্দেশখালী তো প্রকাশই হয়ে গেছে। সন্দেশখালী কালকে প্রকাশ হয়ে গেছে তো। সন্দেশখালী কি ঘটনা ঘটিয়েছে? শুভেন্দু নিজে করিয়েছে এটা, টাকা খাইয়ে শুভেন্দু করিয়েছে। শুভেন্দু চোর, ভারতের পশ্চিমবঙ্গকে সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক হয়েছে শুভেন্দু। कालीगंज पानीघाटा इलाके में अभिषेक बनर्जी के साथ रैली करने के बाद, बड़ी जनसभा करने के बाद अब महुआ मोइत्रा एक रोड शो कर रही हैं, जो कि कृष्णानगर के
चापरा इलाके में है। चापरा 1 और चापरा 2 यहाँ पर ब्लॉक्स है जिसके तमाम गाँवों में वो रोड शो कर रही हैं। हम इस रोड शो को कवर करेंगे और फिर महुआ मोइत्रा से बातचीत भी करेंगे। বাইরে বোনেরা একটু হাত নিয়ে একটু দু হাত তুলে একটু হাত নাড়বেন। আপনারা একটু হাত নেবেন, আপনাদের মেয়েকে অভিনন্দন জানান। हमारे साथ इस समय महुआ मोइत्रा है और कृष्णानगर लोकसभा कंस्टिट्यूंसी से इस समय टीएमसी की प्रत्याशी हैं। अपने इलाके में रोड शो कर रही हैं। चपरा का ये इलाका है, चपरा ब्लॉक 1-2, इसमें इन्होंने काफ़ी सारे गांव में रोड शो किया। मैं इनसे मिल रहा हूं। इनसे मेरा पहला सवाल ये है, महुआ, क्या इश्यूज़ हैं जो आपको यहाँ पर लोगों के सामने जो फेस कर रहे हैं? लोग क्या मुद्दे बता रहे हैं आपको जो आपको लगता है कि इस पर काम करने की यहाँ ज़रूरत होगी? देखिए, ये जो वोट है ये दिल्ली का लड़ाई है। ये कोई लोकल रोड्स या लोकल इश्यूज पे ये लड़ाई नहीं लड़ा जाएगा। ये जो लड़ाई है, दिस इज़ फॉर द सोल ऑफ इंडिया और ये संविधान का रक्षा के लिए है। और सबको यहाँ पे ये समझ है कि ये एज वी से इन बंगाली बांचार लड़ाई, इट्स अ स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। एंड ये जो अभी एक के बाद एक जो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है लास्ट 10 ईयर्स में, एक के बाद एक ये ब्रूट मेजॉरिटी अथॉरिटेरियनिज्म, हमारे देश का जो दिस यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। एंड नाउ पीपल हैव रियलाइज कि अगर इस बार वो सेम मेजॉरिटी से वापस आए तो इंडिया का संविधान का, इंडिया का डेमोक्रेसी का कुछ नहीं बचेगा। जो सूरत वो कहते हैं 1 country 1 election, एक्चुअली वो 1 country no election चाहते हैं। एक चीज़ और, प्रधानमंत्री का आरोप है कि अगर आपकी सरकार आती है या इंडिया अलायंस की सरकार आती है तो आप लोगों से की जो प्रॉपर्टीज है उसको जब्त करने की बात कर रहे हैं और मंगलसूत्र तक छीन लेंगे। इसमें प्रधानमंत्री का 1970 साल से गुजरात में एक औरत प्रधानमंत्री के लिए इंतजार कर रही है हाथ में मंगलसूत्र लेके। पहले वो जाए, वो औरत का मंगलसूत्र उनको वापस करे, फिर हमारे साथ आके बात कीजिए, बोलिएगा। ये सब बकवास जो सुबह से शाम करते हैं ना, मोदी जी का एक ही गारंटी है कि वो जब भी मुंह खोलते झूठ बोलते, और कोई गारंटी उनका है ही नहीं। एक चीज और है, प्रधानमंत्री आजकल कई मंचों से सीधे हिंदू। एक मिनट सर, हम यहाँ पे प्रधानमंत्री क्या आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब देने के लिए नहीं है। आप अपना नैरेटिव, हमारा नैरेटिव बताइए। वो सिंहासन में बैठे हुए हैं, वो हम पे आरोप नहीं लगाएंगे। तो एक सवाल आपके जो पश्चिम बंगाल के हाल के उसमें लगा, एक करप्शन एक बड़ा इशू है जो कि लगता रहा है। 22,000 से 25,000 के करीब टीचर्स के रिक्रूटमेंट में हाईकोर्ट ने कहा उनकी नियुक्तियां रद्द कर दी। उस पर मैं चाहूंगा आप बोल रहे हैं। अच्छा सुनिए, वो करप्शन की जो इशू है, या इंग्लिश में एक कहावत है, अगर एक आदमी की मौत हो गई तो लोग रोते हैं, अगर लाखों का मौत हो गया तो कोई लोग भूल जाते हैं। अब ये जो बीजेपी का जो करप्शन है ये ना हजारों करोड़ों में है, इसीलिए उनको सब जगह एक रुपया 2 रुपया का उनको दिखता है, पर उनका जो हजारों रुपया का जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का करप्शन है, जो सारे इंडिया में उनका कितना ऑफिसेज बन गए नए, सब एयर कंडीशन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ऑफिसेज, उनके पीछे नोबडी इज आस्किंग अ क्वेश्चन। वो हर स्टेट में जाके इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को टॉपल कर रहे, एमएलए एमपीज को खरीद रहे, कोई नहीं पूछ रहा है। और जिसको वो करप्ट कह रहे, आज हमें करप्ट कह रहे, आज जिस मंत्री को वो करप्ट कह रहे, कल अगर वो बीजेपी को ज्वाइन कर दिए तो वो एकदम चुप करके उनसे लेके उनकी वाइट वॉशिंग हो जाएगी। प्रफुल्ल पटेल करप्ट था, अब बीजेपी में आ गए, संत बन गए। अशोक चौहान जी करप्ट थे, जैसे बीजेपी में आ गए संत बन गए। हर कांग्रेस का, हर ऑपोजिशन का जो भी है, जो बीजेपी में ज्वाइन कर लेता है वो ओवरनाइट एकदम संत बन जाता है। मेरा एकदम आखिरी सवाल में हुआ आपसे, संदेश खली की घटना जो हुई उस पर एक कल स्टिंग ऑपरेशन आया जिसमें ये बात सामने आई है कि वो फेक था और
उसमें किसी तरह से चीज़ों को माफ किया गया और मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट हुआ। आज आपकी पहली जनसभा थी जो कालीगंज में, और उसमें पहली बार हमने देखा कि बड़े पैमाने पर उस स्टिंग के वीडियो लोगों को दिखाए गए। ये स्ट्रेटजी क्या है, और संदेश खाली की जो घटना है उस पर आपका क्या, टीएमसी का क्या स्टैंड ये है? संदेश खाली जो घटना है वो पहले दिन से हम लोग कह रहे थे कि ये बीजेपी का कोई स्टेज मैनेजमेंट है, क्योंकि हम बंगाल में रहते हैं, हमारा रूरल कंस्टिट्यूएंसी है। ये जो नैरेटिव जो उनका है बीजेपी का, ये ऑल इंडिया गोदी मीडिया के लिए ये नैरेटिव था। बंगाल में आप देखिए, ये रूरल एरिया है, ये हर लेडीज से आप पूछिए, ये पंचायत समिति के सभापति रही है, यहाँ पे जितने सारे यंग गर्ल्स देख रहे हैं, ये लुक हाउ फ्री दे आर, लुक हाउ फ्री आई एम। आप हमारे साथ आए, मेरे साथ कोई पुलिस नहीं जाता है, इनके साथ कोई पुलिस नहीं जाता है, सो इट इज़ द सेफेस्ट प्लेस। तो ये संदेश खाली जो मुसलमान जाके हिंदुओं को लेडीज के रेप कर रहे हैं और मुसलमान जाके सबका गला काट रहा है, ये जो ये एक डिविसिव, एक पोलराइजेशन का जो नैरेटिव है, ये बीजेपी एक दिन पहले दिन से ये कर रहा है, ये हमें पता ही था। और ये जो स्टिंग ऑपरेशन का जो यूट्यूब में आया है, उसमें साफ अभी पता चल रहा है कि बीजेपी का जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है बंगाल में, उन्होंने ये पूरा चीज़ को मास्टरमाइंड करके, कैसे मोबाइल फ़ोन देके, कैसे पैसे देके, उनका जो कैंडिडेट है बशीरहाट में, उनको 2000 रुपया देके ये कोई फेक रेप। एंड दिस इज टेरेबल बिकॉज यू नो दिस इज टेरेबल बिकॉज जब कोई असल में कहीं रेप हो जाए, फॉर एवरी फेक रेप यू आर एक्चुअली doing harm to the interests of people who are actually facing violence. Last you've been saying last for last 3 questions. लास्ट में एकदम से ये अलायंस ठीक से मतलब काम नहीं कर last. पाया। अच्छा, ये ये कौन कह रहे हैं? ये कौन कह रहे हैं? आप सारी सीटों पर लड़ रही हैं। क्यों, तो क्या हुआ? तो हम यहाँ पे लड़ रहे, तो हम क्या पलटू चाचा के साथ रहे, जो आज बीजेपी के साथ है, कल किसी और के साथ है? पलटू चाचा का हम आर्मी ले ले, जो उनके साथ जो है टीडीपी है। तो क्यों कांग्रेस, हमारे जो इंडिया अलायंस है, वी आर ऑपरेटिंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वी फाइट वेयर वी आर स्ट्रॉन्गेस्ट। जैसे कांग्रेस अकेला इन राजस्थान, इन छत्तीसगढ़ इज एमपी, इट्स एब्सोल्यूट स्ट्रैटेजी। केरल में तो कांग्रेस और सीपीएम अलग लड़ रहे, दिल्ली में आप और कांग्रेस एक साथ लड़ रही है, पर पंजाब में अलग लड़ रहे। इट इज बेसिकली द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइट्स द बीजेपी। वोटर का जलेबी बन गया दिमाग। नहीं, ये आप लोगों ने, आपका गोदी मीडिया ने जलेबी बनाए, क्योंकि वोटर जो है वो सिर्फ एक जगह वोट देता है। एक जो वोटर है, जो चापड़ा का वोटर है, वो दिल्ली में वोट नहीं देता है। चापड़ा को जो वोटर है, उसके पास सिर्फ एक ही चॉइस है, या बीजेपी या तृणमूल। तो बीजेपी तो ये जो है, ये जाके कंफ्यूज नहीं होते, क्योंकि ये डिफरेंट स्टेट्स में जो ऑप्शन है वो बंगाल के वोटर के पास नहीं होंगे, उनके पास सिर्फ एक ही चॉइस है। बस एक चीज पता नहीं, अब जो महुआ ने कहा गोदी मीडिया, उसमें हम नहीं आते, ये बात मैं साफ करना चाहता हूँ। पता नहीं किसकी तरफ इशारा था, वो मुझे नहीं मालूम, पर ये रोड शो था, अभी यहाँ पर खत्म हुआ है। बहुत सारी यहाँ पे जनता है, उनसे भी हम थोड़ा सा बात। जय बांग्ला! जय बांग्ला! हमारा ममता बनर्जी का जो सरकार है, यहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंट किया है, सड़क बनाया है, सजल धारा किया है, बेटी को, बहन को कन्याश्री, रूपोश्री दे रहा है, बहुत लड़कियाँ, बहुत मेरे भाई, बहुत मेरे चाचा, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। यहाँ का बहुत डेवलपमेंट हुआ। फाइनली मेरा चापड़ा ब्लॉक में हमारा जो कैंडिडेट है महुआ मोइत्रो, उसी ने हॉस्पिटल के लिए, हमारा चापड़ा का जो रूरल हॉस्पिटल है, 55 लाख रुपया रिसेंटली दिया है डेवलपमेंट करने के लिए। बहुत सारे रोडे बनाए हैं। हमारा दीदी का सरकार। आप टीएमसी के कार्यकर्ता हैं या नहीं? हम साधारण वोटर है। जो हमारा जो इशू है, हम इधर रहना चाहते हैं, सब लोग एक साथ मिल बांट के रहना चाहता है। हमारा इधर जो रहता है, जैसे हिंदू बोलो, मुस्लिम बोलो, क्रिश्चियन जो बोलो, जो भी है, हम एक साथ रहता है। जिंदगी बिताना भी ऐसे चाहिए। अगर समाज में डिवाइडेड करके आप सोच रहे हैं, अगर समाज का कोई उन्नयन आएगा, ऐसे नहीं हो सकता है। तो आज सुबह से हम कृष्णानगर कंस्टिट्यूंसी जो लोकसभा सीट है पश्चिम बंगाल में, उसको कवर कर रहे थे। पिछले चुनाव के नज़रिए से अगर थोड़ा सा हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत अनएक्सपेक्टेड सफलता मिली थी। 18 लोकसभा सीटें जीती थी उसने, और इस बार भी अगर आप पार्टी के लोगों से पूछे जाए, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों से पूछे, तो वो कहते हैं कि वो इसको बढ़ाएंगे, इस नंबर को और बढ़ाएंगे। दूसरी तरफ टीएमसी के नेता हैं, टीएमसी के समर्थक हैं, उनका ये कहना है कि इस बार बीजेपी के वो नंबर कम होंगे और टीएमसी अपने नंबर्स को बढ़ाएगी। खैर, ये तो दोनों पार्टियों और उनके समर्थकों के दावे हैं, लेकिन कृष्णानगर कंस्टिट्यूंसी जो है, वहाँ पर हमने आज एक जनसभा को संबोधित किया और थोड़ा सा बदले हुए माहौल में किया है, क्योंकि बीते 2 दिनों में पश्चिम बंगाल की राजनीति में काफ़ी उठापटक हुई है। पहले यहाँ के गवर्नर के ऊपर सेक्सुअल मोलेस्टेशन के आरोप लगाए एक महिला ने, उसके अगले दिन एक स्टिंग ऑपरेशन जारी हुआ
जिसमें ये बात सामने आई कि संदेश खली में जो यौन उत्पीड़न की पीड़ित महिलाएं थी उसमें झूठ बोला गया, या वो फेक था, या उसमें पैसे देकर उनसे झूठ बुलवाया गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, ये कैमरे पर है। तो ये सारी चीज़ें थी। उसमें आज अभिषेक बनर्जी जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उन्होंने एक बड़ी जनसभा कृष्णानगर में की। इसके बाद वहाँ से निकलकर महुआ मोइत्रा एक रोड शो निकाली हैं उन्होंने छपरा ब्लॉक में, और ये रोड शो यहाँ के तमाम गांवों से होता हुआ इस जगह पर कल्मिनेट हुआ। ये चापरा कस्बा है, छोटा सा बाज़ार है, वहाँ पर ये रोड शो ख़त्म हुआ है। न्यूज़ लॉन्ड्री और द न्यूज़ मिनट का ये जो कवरेज है, ये हमारे तमाम सब्सक्राइबर जो हमारे एनएल सेना और हमारे इलेक्शन फंड को मदद कर रहे हैं, उन लोगों की मदद से आप तक पहुंच रहा है। इसको हम पूरा करने में हमारी मदद करें जल्द से जल्द। धन्यवाद। This election season, your right to choose puts you at the heart of it again. We'd like to be your eyes and ears. Choose the journalism and media that serves democracy and you. Simply head on to newslaundry.com/subscription and pick up the TNM NL joint subscription of your choice today.